हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 270 270 एंड 272, 71 एंड 72। आज मैं 3 अनुच्छेदों को पढ़ूंगी, 270, 271 एंड 72। तो ठीक है, चलें स्टार्ट करें। ओके, 270 आर्टिकल क्या कहता है? 270 आर्टिकल 270 आर्टिकल says about the taxes levied and distributed between the union and the states। क्या कह रहा है कि उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण। जो भी भारत सरकार के अंदर जो भी भारत राज्य के संपूर्ण क्षेत्र के अंदर जो भी टैक्स हैं, कर, शुल्क उद्ग्रहित किए जाते हैं, तो उनका संघ, यूनियन और राज्यों के बीच में वितरण कैसे होगा, उसके बारे में ये बात की जा रही है। वो कौन से कर हैं जिनका संघ और राज्यों के बीच वितरण होगा, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बताता है। 270 article says about the taxes levied and distributed between the union and the states. Number 1, all taxes and duties referred to in the union list, except the duties and taxes referred to in Article 268 and 269, respectively. Surcharge on taxes and duties referred to in Article 271 and any cess levied for a specified purposes under any law made by Parliament shall be levied and collected by the Government of India and shall be distributed between the Union and the States in the manner provided in Clause 2nd. Number 2, such percentage as may be prescribed of the net proceeds of any such tax or duty in any financial year shall not form part of the consolidated fund of India, but shall be assigned to the states within which that tax or duty is leviable in that year. That tax or duty is leviable in that year and shall be distributed among those states in such manner and from such time as may be prescribed in the manner provided in clause 3rd. Number 3rd, in this article, prescribed means number 1, until a finance commission has been constituted prescribed by the president by order. Until a finance commission has been constituted prescribed by the president by order, and after a finance commission has been constituted prescribed by the president by order after considering the recommendations of the finance commission. 271 article says surcharge on certain duties and taxes for purposes of the union। क्या कहा जा रहा है 271 अनुच्छेद के द्वारा कि कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अभिभार, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, सरचार्ज। 271 says about surcharge on certain duties and taxes for purposes of the union. Notwithstanding anything in articles 269 and 270, Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in those articles by a
surcharge for purposes of the Union, and the whole proceeds of any such surcharge shall form part of the consolidated fund of India. 272 article says about the taxes which are levied and collected by the Union and may be distributed between the Union and the states, repealed by the Constitution 80th Amendment Act 2000 S4। तो अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है इन तीनों अनुच्छेदों में, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों की संख्या हमारे देश में अधिक है, वो हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए हिंदी में पढ़ती हूँ। दो 270 अनुच्छेद कहता है उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 270 बताता है कि उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। नंबर 1 क्रमशः अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 269 में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और सभी शुल्क। अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिकार और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्ग्रहित कोई उपकर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा खंड 2 में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित कर दिए जाएंगे। नंबर 2 किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का ऐसा प्रतिशत जो विहित किया जाए भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगा, किंतु उन राज्यों को सौंप दिया जाएगा जिनके भीतर वे कर या शुल्क उस वर्ष में उद्ग्रहणीय है और ऐसी रीति से और ऐसे समय से जो खंड 3 में उपबंधित रीति से विहित किया जाए उन राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। नंबर 3 इस अनुच्छेद में विहित से अभिप्रेत है जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विहित और वित्त आयोग का गठन किए जाने के पश्चात वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विहित। अनुच्छेद 271 कहता है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में किसी बात के होते हुए भी संसद उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और किसी ऐसे अधिभार के संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे। अनुच्छेद 272 कहता है कर जो संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे। संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 4 द्वारा निश्चित। तो ठीक है, आज मैं 3 अनुच्छेदों को पढ़ूंगी क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट नहीं रहता है लोगों का सुनने का। हमारे भाई बंधु हैं वो वैसे भी ये हमारे वीडियो को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हमें पता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, मेरा काम है पढ़ना और वीडियो अपलोड करना। अगर वो सुनते हैं, संविधान को जानने की कोशिश करेंगे तब भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भी सुनने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश, तब भी मेरा क्या जाता है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, तो नो प्रॉब्लम। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत आप सभी को। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आपका मन हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम चल ही रहा है। थैंक यू। जय भीम।